Hello students, how are you all? So today we will do exercise 2.5 class 9th mathematics. So we have done exercise 2.1 to 2.4. You can check the I button and you will get all these videos. Okay. So we have discussed about identities in our previous video. Previous videos में हमने कुछ identities की बात की थी. And we have done our question number 1, 2, 3 there. Now, in this part, we will go further and we will do question number 4, 5. So let us see what is given there. अगर आप में से किसी को भी 1, 2, 3 पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, then you can comment and tell me. Okay. और see, this is our question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है, यहाँ पे क्या है, ट्राइनोमियल है और ट्राइनोमियल का स्क्वायर हमें करना है. तो पहले हम आइडेंटिटी से फेमिलियर हो जाते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी हमें ट्राइनोमियल के स्क्वायर के लिए यूज करनी होती है. सो लेट अस सी, इफ यू हैव अ ट्राइनोमियल a प्लस b प्लस c एंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है आपको, देन यू हैव टू राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. सो दिस इज द मेन थिंग. ये जो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज की है, क्वेश्चन नंबर 4 and 5 बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी ओनली. सो लेट अस रिकॉल दिस. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या गिवन है आइडेंटिटी में, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तीनों के स्क्वायर्स लेने हैं आपने पहले, तीनों टर्म्स के. वो टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं. यहाँ पे ए बी सी है, 3x हो सकती है, 4y हो सकती है, तो उनका स्क्वायर करना है आपको. मान लो फर्स्ट टर्म 3x है और आप 3x का स्क्वायर करो, तो 3x का स्क्वायर कितना होगा, 9x स्क्वायर. तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है. ठीक है. देन 2ab, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म एंड देन 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट टर्म. ठीक है. So let us do fourth question, first part. See here what is given in the fourth question, first part, x plus 2y plus 4z whole square. So we will apply this identity, a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि x is equal to a, b को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड टर्म दैट इज 2y, and c is taken as 4z. So if I would like to find out x plus 2y plus 4z whole square, then it will be x square plus 2y whole square plus 4z whole square plus 2 into x into 2y plus 2 into second term into third term and then plus 2 into third term into first term. So by this way we have to apply the identity. अब यहाँ पे हमने आइडेंटिटी तो अप्लाई कर दी है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें स्क्वायर करने होंगे. ठीक है. किस किस का स्क्वायर लेना होगा, सी हियर, 2y होल स्क्वायर विल बी 4y स्क्वायर, 4z होल स्क्वायर विल बी 16z स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 2y, तो इस 2 से इस 2 की मल्टीप्लाई हुई, कितना हो जाएगा 4xy, 2 इंटू 2 इंटू 4, so here we will get 16yz, 2 into 4, here we get 8zx. Okay, so our answer will be, so I have written your answer here, check here, x plus 2y plus 4z whole square equal to x square plus 4y square plus 16z square plus 4xy. 4xy कैसे आया, this 2 get multiplied by this 2, 2 to the 4xy, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 4, 4 for the 16, so 16yz and then 2 for the 8zx. So this is your final answer. So let us do the next question, second part of it. So second part में हमारे पास क्या है, a is taken as 2x, b is taken as minus y and c is taken as
z. So if we apply a plus b plus c whole square, then 2x minus y plus z whole square equal to a square. That means 2x whole square, b square means minus y whole square, c square means z whole square plus 2 into first term into second term plus 2 into second term into third term and plus 2 into third term multiply first term. So what will be our answer in that case? 2 square will be 4. So we will write 4x square. Minus y whole square will be y square. Z whole square will be z square. This plus multiply minus will be minus 2 to the 4 xy plus into minus will be again minus 2 yz and last plus 2 to the 4 zx. So this is our second part and this is also the same kind. So let us move ahead. Next part, third part. If we check here, third part. Okay, if we check here, this third part, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट आर क्वाइट सिंपल. और जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है, फर्स्ट पार्ट किया है, ये बिल्कुल इसी काइंड का है. तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन टेल मी. एंड वी आर गोइंग टू डू नाउ सिक्स्थ पार्ट. अभी हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन भी है. so let us see how to do sixth part. yes, now we will take a equal to 1 by 4. तो क्या हो जाएगा 1 by 4a minus 1 by 2b plus 1 square will be equal to 1 by 4a whole square plus minus 1 by 2b whole square plus 1 square plus 2 into first term. First term क्या है 1 by 4a into second term minus 1 by 2b plus 2 into second term 1 by 2b again into third term that is 1, 2 into third term that is again 1 and then first term 1 by 4a. so let us write it as, अगर हम इसे फाइनली लिखें तो किसके इक्वल आएगा ये 1 by 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर देन प्लस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है पॉजिटिव. तो ये नेगेटिव है यहाँ पे, स्क्वायर इसका पॉजिटिव होगा. 1 by 2 का स्क्वायर क्या होगा 1 by 4 b स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. देन दिस प्लस मल्टीप्लाई माइनस will be minus here. 2 will be cancelled out by this 2. So we will get 1 by 4 AB. Okay. Then this plus sign will get multiplied by minus. We get minus again. This 2 will cancelled out by this 2. So we will get only B. And then last 2 2s are 4. So we get 1 by 2A from here. So this is our sixth part. सिक्स पार्ट में भी आपने सेम आइडेंटिटी का यूज करना है और आपको बीच में 3 पार्ट मैंने आपके लिए दिए हैं. प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ राइट नाउ. अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है आप कमेंट करके बताइए. ठीक है, तो ये हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मीन्स ट्राइनोमियल के स्क्वायर के बारे में आज पढ़ा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन. लेट्स सी. सो फिफ्थ क्वेश्चन को अगर मैं एनालाइज करूं, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को देखते हैं 4x 9y 16z स्क्वायर. तो ये तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. ठीक है, और इस फैक्टराइजेशन में ये चीज क्लियर है कि मेरे पास टोटल 6 टर्म्स हैं. तो अगर मैं ध्यान से देखूं 6 टर्म्स में से 3 टर्म्स मेरी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. So yes, I can apply the same formula here. So let us see how to do this question. So ये है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट. इसमें फर्स्ट जो टर्म है
दैट इज 2x होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर को मैं 2x होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। 9y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3y होल स्क्वायर। 16z square can be written as 4z whole square. Next term can be written as 2 multiply first term into second term. ठीक है, बट अब यहाँ पे एक चीज है कि दो टर्म्स माइनस है, लास्ट की जो दो टर्म्स है ये देखिए, these two terms are negative। ऐसी कौन सी अल्फाबेट है जो दोनों में है, मतलब दोनों में कॉमन है? तो आई कैन से कि हाँ जी, यहाँ पे क्या चीज कॉमन है दोनों में? z दोनों में कॉमन है और नेगेटिव साइन दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स कि जो z वाली टर्म है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो वी विल राइट हियर दिस 4z विल बी -4z। आई विल राइट दिस 4z एज -4z। ठीक है, so we will write 2 into 2x into 3y, then next we will write plus 2 into second term into third term में -4z, then 2 into थर्ड टर्म into फर्स्ट टर्म। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यही आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 2 into 3 into 4z, 2 3 6 4 24yz, so this is 24yz और माइनस भी होगा साथ में। ठीक है, लास्ट हम चेक करते हैं 2 into -4 into 2, so 2 4 8, 8 2 16, so -16xz should be there, so -16xz is there। so yes we can say that कि अगर हम इस फॉर्म में इसे लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स कि वी कैन कंपेयर इट बाय, वी कैन राइट हियर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन से आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करेंगे? बाय यूजिंग आइडेंटिटी। फैक्टराइज करने के लिए हम लेंगे कि अगर हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अगर हमारे पास ये टर्म्स हैं तो वी कैन राइट इट एज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो दैट मीन्स सिमिलरली this can be written as a means 2x, b means -3y and c means, so that means we can take it as 2x plus 3y minus 4z whole square। ठीक है, तो ये हमारी जो हमने आज आइडेंटिटी करी है उसी का यूज करके हमने इसको फैक्टराइज किया और आगे फर्दर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? So this can be written as 2x plus 3y minus 4z into 2x plus 3y minus 4z। तो यहाँ पे इसके दो फैक्टर्स हो गए, फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर, एंड बोथ आर सेम। तो ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमने किया है। लेट अस डू द सेकंड पार्ट नाउ। देखिए बेटा, अब आप सोचेंगे कि मैम फर्स्ट वाला जो है वो तो स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसे कैसे लिखें? तो ये 2 जो है ये √2 है ना, √2 का स्क्वायर है, तो हम इसे लिखेंगे √2x होल स्क्वायर। y can be written as directly y whole square। 8z square can be written as 2√2z whole square। ठीक है, बट यहाँ पे भी एक चीज है कि नेगेटिव साइन इज अपेयर ट्वाइस। x के साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो या तो x नेगेटिव होगा या फिर y और z दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कि y भी नेगेटिव है और z वाली टर्म भी, थर्ड टर्म भी नेगेटिव है। then what we can write here, next term क्या लिखी जाएगी? 2 multiply √2x multiply -y, ठीक है, plus 2 multiply -y multiply -2√2z, then plus 2 multiply -2√2z है ना, थर्ड टर्म, एंड मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे then you will get the same terms here। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, देखते हैं एक बार। हाँ जी, 2 multiply 2 is 4, √2 into √2 that is 2 only, तो 4 2 is 8, so 8 is given here है ना। तो by this way we can say, so यहाँ पे हमने इसके बाद हमने आइडेंटिटी लिखनी है। आई एम नॉट राइटिंग इट हियर, आप मेंशन करेंगे by using identity। सेम आइडेंटिटी यू हैव टू यूज हियर ऑल्सो। विच आइडेंटिटी? चलो लिख ही देती हूँ मैं।
if you have a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, ठीक है, so that is equal to 2ab छूट गया इसमें, 2bc पहले लिख दिया, so that is equal to a plus b plus c whole square. So from here also we can write it as a, that is root 2x, a that is root 2x, b means minus y and c means 2 root 2z. तो हम इसे लिख सकते हैं root 2x minus y minus 2 root 2z का whole square, or it can be written as root 2x minus y minus 2 root 2z multiply by root 2x minus y and minus 2 root 2z. So with this we have completed our question number 4 and 5. और आज हमने इसमें एक नई आइडेंटिटी का यूज करा, that is square of trinomial, and we will use a new identity in the next part. So right now please do all these sums yourself first, practice a lot. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करके बताइए. If you like the video, please subscribe the channel and share it with all your friends and comment there, push the like button. Thank you so much for watching, and in the next part we will have question number 6 onward there. So thank you so much for watching here.